Hi students, in my previous lecture we had started Muslim law. In my previous lecture we had dwelt on the various aspects of personal law. We had given a critical analysis of the entire concept of personal law in India. We now go on to Muslim law per se. Of all the systems of law which are prevalent in India, Islamic system of law has a special place. It has a most interesting phenomenon of a meteoric rise from a very simple beginning to a huge expanse in a very short period of time. As I told you that Islam is a new phenomenon. It is not as ancient as Hindu law, etc. The origin lies in Arabia. As I told you, Arabia का जो the geographical aspects of Arabia determine its sociological aspects. There was desert, there were tribes. Pura Arabia was divided into tribes. They were all nomadic tribes, aaj idhar kal udhar, because there was no agriculture. And that is why it was more of a tribal culture, a nomadic tribal culture, and they were all mostly traders or raiders. Their laws which were dealing with those tribes were basic customary tribal laws, which were dime a dozen. कितने ही थे वो. Since the society was mostly raiders or traders, there was predominance of males. That is the reason why women were denigrated to a secondary status. This is obvious when we see the law of marriage, divorce, muta marriages. देखेंगे हम सब बाद में. There was no place for cognates, haphazard laws, non-democratic laws, laws based on inequality. Polygamy was common. Divorce was easy. You could have as many wives as you wanted. This was the existing structure. This existing structure of Arabian laws before what we call pre-Islamic customary law was, as I said, based on total inequality. There was idol worship, there was totem worship. They had their own tribal laws. In fact, there was a chaotic existing. Then comes Prophet Muhammad. The birth of the Prophet
brings a sea change in the existing Arabic customary laws. The Prophet was born in 570 AD. When he was born, his father was no more. He was brought up by his mother. Then she also died early. Then he was brought up by his grandfather, and after him by his uncle. He was a very serious type of person who was always meditating. At the age of 35, he married a widow called Khadija. At the age of 40, he used to meditate a lot. He used to be sitting in caves, meditate बहुत करते थे. Suddenly he received a wahi from God. Wahi means a revelation. And the God's revelations came to him through an angel called Gabriel. So Archangel Gabriel ke through, God gave him revelations. He's only one person whom God called Allah chose. He was a chosen one of Allah himself. Unlike Hinduism, where we have a pantheon of gods, here in Islam, there is only one God called Allah, and he is only one chosen person through whom he is giving his divine orders. ये बेसिक रीजन है हिंदुइज्म में और इस्लाम में. इस्लाम में देयर इज ओनली वन गॉड, एंड उनका भी सिर्फ एक ही नुमाइंदा है, हुज प्रॉफिट मोहम्मद. और क्योंकि उन्होंने खुद चुना है, इसलिए जो भी प्रॉफिट कह रहे हैं वो भी अल्लाह की ही जुबान बोल रहे हैं. This is why this is the fundamental thing of Islam. और जो भी इस्लाम कबूल करता है उसको ये फंडामेंटल चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है. ये इतनी फंडामेंटल है कि जब भी कोई इस्लाम एम्ब्रेस करता है वो यही कलीमा बोलता है. दिस इज कॉल्ड कलीमा. व्हाट इज दैट? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह. There is only one God and there is only one Rasul whose name is Muhammad. एक ही अल्लाह हैं और एक ही उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं जो मोहम्मद साहब हैं और कोई नहीं है. इसलिए whatever Allah has said, which is being directly revealed to the Prophet, or then whatever the Prophet is doing, वो सारा डिवाइन लॉ है. वो डिवाइन लॉ है, इसलिए वो चेंज नहीं किया जा सकता, because it is the word of Allah himself which is now being written in the Holy Quran. जो कुछ
प्रॉफिट ने कहा, जो कुछ प्रॉफिट ने करा वो भी अल्लाह की मर्जी से किया। जो कुछ प्रॉफिट ने कहा या उन्होंने किया वो भी डिवाइन लॉ बन गया, उसको हम उनका सुन्ना कहते हैं। वाही में जो उनको रेवलेशंस मिले वो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताए। इनके जो इनिशियल फॉलोअर्स थे, सबसे पहले उनकी अपनी वाइफ खदीजा, उनके ससुर अबू बकर, एक ब्लाइंड स्कॉलर था जो उनका बहुत बड़ा शिष्य था, हिज नेम इज वरक्का, WARAKA, and then there were 3 more people, उमर, उस्मान एंड अली। ये इनके इनसाइड ग्रुप के लोग थे जो इनकी बातों पे, क्योंकि जब उनको रेवलेशंस आए जो अल्लाह ने आर्कएंजल गैब्रियल के थ्रू दिए, तो जब उन्होंने बताया तो लोगों ने उनको डिसबिलीव किया। ये जो लोग थे इन्होंने नॉट ओनली इनको बिलीव भी किया और उसको फैलाया भी। ये जो लोग हैं, उनकी वाइफ खदीजा, उनके ससुर अबू बकर, उनके बाकी जो साथी हैं वरक्का, उमर, उस्मान, अली, ये उनके साथ थे। जब रेवलेशंस आ रही थी वो बता रहे थे, ये वहां थे, मतलब उनको बता रहे थे। They were not there where they used to get the revelations at various places, but he used to tell them. इसलिए ये जो ये जो अभी मैंने नाम लिए हैं, ये इस्लाम में बहुत बड़े नाम हैं, क्योंकि ये उनके कंपेनियंस कहलाए जाते हैं, द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। और बाद में हम देखेंगे कि अबू बकर, अली और अदर उस्मान, उमर एंड अली कैलिफ्स बनते हैं। वो हम अभी देखेंगे कौन कैलिफ्स थे। नेचुरली इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ही वॉज इन मक्का। वहां के जो पगान्स हैं उन्होंने इनको परसिक्यूट करना शुरू कर दिया, इनको मारने तक की नौबत आ गई। फ्रॉम देयर ही वेंट टू मदीना, क्योंकि इनके पीछे पड़ गए वहां के जो रूलर्स थे पगान्स, दे ऑल परसिक्यूटेड हिम, और इन्होंने सब ने मदीना चले गए। ये जो मक्का से मदीना, MECCA एंड MADINA, मदीना, ये जो जाना है, दिस फ्लाइट फ्रॉम मक्का टू मदीना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हिजरा, HEJIRA, ऑल्सो कॉल्ड हिजरी, HIJIRI, जैसे मर्जी बोल दो। ये हजीरा जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इपॉक इन मुस्लिम लॉ एंड मुस्लिम थियोलॉजी। ये होता है 622 AD, 622 AD is the year of Hijra, when the Prophet took a flight from Mecca to Medina. यहीं से 622 AD
से मुस्लिम कैलेंडर शुरू होता है, यानी कि 623 एडी विल बी कॉल्ड आफ्टर हेजीरा 1 AH1। तो मुस्लिम कैलेंडर ऑलवेज इज AH। 622 AD being 0, 623 1 AH, 624 2 AH। तो मुस्लिम कैलेंडर कायदे से हेजीरा से शुरू होता है। 622 AD इज 0, यहां से शुरू हो जाता है। मदीना में जब प्रॉफिट साहब गए, एंड नाउ ही गेव हिज मैसेज व्हाट वाज रिवील्ड टू हिम बाय अल्लाह टू द पीपल, और उनका अब जो उन्होंने वहां पे अपनी टीचिंग्स दी, they were well received by the people of Medina. He got very good followers, सारे उनके followers बहुत जल्दी बन गए। स्लोली उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना ली कॉल्ड उम्मा, UMMA। पर अब मक्का वाले कहां छोड़ने वाले थे? इनको पता चल गया कि उनकी फॉलोइंग बहुत तेज बढ़ रही है। उन्होंने तो वहां से भगाया था मक्का से। तो पहले एक आर्मी ने उनको अटैक किया जिनमें जूस थे। बाद में क्रिश्चियन आर्मीज ने भी इनको अटैक किया। सबको प्रॉफिट मोहम्मद की आर्मीज ने सबको हरा दिया। हारने के बाद वापस इनका पूरा कब्जा मक्का, मदीना और बहुत सारे सराउंडिंग एरिया में हो गया। यह सबसे गोल्डन पीरियड है इस्लाम का। ही वॉज इन मदीना फॉर अबाउट 10 years। एज 10 में उनकी डेथ हो जाती है। ही डाइड इन 632 AD। ये जो 10 साल थे मदीना में, सारा मैक्सिमम मुस्लिम लॉ का काम अब हुआ है। यू नो, दिस इज द रीजन व्हाई मुस्लिम्स और जूस की और क्रिश्चियंस की लड़ाई है, क्योंकि जूस ने सबसे पहले अटैक किया था, फिर क्रिश्चियंस ने किया, सबको हराया इन्होंने। बट यू नो दे, क्योंकि उन्होंने नेचुरली, फॉलोअर्स यही मानते हैं कि उन्होंने हाउ डेयर दे अटैक, वो भी हमारे प्रॉफिट को, इसलिए कभी भी जूस की और मुस्लिम्स की नहीं बनी, या क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की नहीं बनी। उसका बैकग्राउंड ये है, इन दीज 10 years इन मदीना, the maximum of the Holy Quran was spoken. I'm using the word spoken क्योंकि कुरान शरीफ लिखी नहीं गई थी। प्रॉफिट साहब बोलते थे और लोग उसको जहां जो कुछ मिलता था वहां लिखते थे। बड़े बड़े पाम के पत्तों पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे, यहां तक कि बड़े जानवरों की जो शोल्डर ब्लेड्स की हड्डियां होती हैं उन पे भी लिखते थे। इट वॉज लाइक पर्ल्स ऑफ विजडम विच वर कमिंग फ्रॉम देयर गॉड अल्लाह, हु वॉज नाउ स्पीकिंग थ्रू द प्रॉफिट। इन सबको कंपाइल तो बहुत बाद में किया गया। जो आज हम स्वरूप देखते हैं होली कुरान का, वो बहुत बाद में आता है। प्रॉफिट साहब के टाइम पे ये नहीं था कि होली कुरान वाज नाउ कट एंड ड्राइड एंड बाउंड एज अ बुक एंड ब्रॉट आउट, नहीं, ये बहुत बाद में होता है। जैसे कि हम अगर इनका पैरेलल देखें हमारे हिंदू लॉ में, तो हिंदू लॉ का शुरुआत भी श्रुति से होता है।
बाद में इनको याद करके लिखा गया स्मृतिज में। सिमिलरली यहां पे भी जो वो बोलते जा रहे थे, लोग लिखते जा रहे थे। This period of AH1 to AH10 is the most glorious and the most fruitful, because all the verses of the Holy Quran were composed at this time. इस टाइम पे सारे जितने भी होली कुरान के इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, ग्लोरी, क्योंकि सारी कुरान इसी टाइम लिखी गई है। रीजन ये है कि अल्लाह ने सिर्फ एक ही इंसान को चुना था, वो थे प्रॉफिट। और कोई नहीं है जिसको अल्लाह ने चूज किया है। इसीलिए रेवलेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट साहब को आती है। और इसीलिए जो कुछ उन्होंने कहा है वो तो अल्लाह का ही वर्ड है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विच हैज कम while trying to amend Muslim laws और codify Muslim laws। ये बेसिक रीजन है कि क्यों आज तक हम मुस्लिम लॉ को कोडिफाई नहीं कर सके। अनलाइक हिंदू लॉ जो हमने बहुत जल्दी 1955 में शुरू कर दी थी, HMA 1955 में आता है, ये बाद में आता है। हिंदू लॉ में हम ये नहीं मान सकते कि एक भगवान है। हिंदू लॉ में वी हैव अ ट्रिनिटी। इवन अगर हम सबसे बड़ी ट्रिनिटी मान लें तो भी वहां पे हमारे पास ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, विष्णु इज अ मेंटेनर एंड शिवा, महेश, इज द डिस्ट्रॉयर। उसके बाद वी हैव सो मेनी पैंथियंस ऑफ गॉड्स। फायर, पृथ्वी, वायु, बाद में देवी माता आती हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे ब्रांचेस हो जाती हैं। शैविज्म, वैष्णविज्म। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू लॉ एक ही भगवान ने बोला है। अब हमारे जो ऋषियों को बोली गई श्रुतिस, वो भी बहुत सारे हमारे ऋषि हैं, बहुत फेमस ऋषि हैं, नो डाउट, गौतम ऋषि वगैरह वगैरह। पर वो बहुत सारे ऋषियों को बोला। नो डाउट हमारे भी भगवान ने, हिंदुओं ने सेजिस को बोला और सेजिस ने बाय वर्ड ऑफ माउथ आगे ट्रांसमिट किया। पर और इसीलिए हमारे वहां पे पॉसिबिलिटी थी कि आहिस्ता आहिस्ता डेडवुड आ गया हो, क्योंकि वो क्लियर नहीं था। अगर हम ऋग्वेदा को देखें हम चारों वेद को देखें, ऋग्वेदा में हार्डली एनी लॉ, इनफैक्ट चारों वेदा में हार्डली एनी लॉ। ऋग्वेदा ले लो, अथर्ववेदा ले लो, यजुर्वेदा ले लो, सामवेदा ले लो, कहीं भी लॉ पर से नहीं है। चैंट्स हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, आपका रहना कैसे है, वगैरह वगैरह। यहां पे फर्क है। यहां पे अल्लाह खुद, जो एक ही हमारे भगवान है, यहां फर्क आ गया। ला इल्ला इल्लल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, बस। और उनका भी सिर्फ एक ही आदमी है, एक ही चोजन वन है। दैट चोजन वन इज प्रॉफिट मोहम्मद, ला इल्ला इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। एक ही है बस।
तो कोई भी अब स्कोप नहीं है कि हम अल्लाह का वर्ड चेंज कर सकें जो उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट के थ्रू बताया। हाउ कैन मैन चेंज द वर्ड ऑफ अल्लाह? पार्लियामेंट कौन होती है अल्लाह का वर्ड चेंज करने को? इट इज द वेरी वर्ड ऑफ गॉड, एंड दिस वर्ड, whatever the teachings are, not the teachings given now, they were always there and they will always remain. You as earthly beings, how can you change that law which is a divine law, which divine law is far superior to man-made law? कैसे चेंज करोगे? ये बेसिक रोड ब्लॉक है मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करने के लिए, और ये कारण है कि आज तक क्यों हम मुस्लिम लॉ को कोडिफाई हिंदू लॉ की तरह नहीं कर पाए, क्योंकि वो सारा लॉ भी जो है वो हमें अल्लाह ताला ने दिया। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। क्यों हुआ ऐसा? विद द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, पहला इपॉक मुस्लिम लॉ का खत्म हो जाता है। उनके बर्थ से शुरू हुआ, रेवलेशंस वाही से शुरुआत हो जाती है इस्लाम की, और उनकी डेथ से पहला फेज खत्म होता है। दो वर्ड्स आ गए, इस्लाम, मुस्लिम। Muslim is an Arabic word which basically means one who submits to God. जो गॉड को सबमिट करता है वो मुसलमान होता है। इस्लाम जो होता है उसका मतलब होता है, वो अगेन एक अराबिक वर्ड है, इसका मतलब है पीस, सबमिशन, सबमिशन टू गॉड। एंड मुस्लिम इज वन हु सबमिट्स टू गॉड, and because he submits to God, there is peace. Islam, which was now introduced by, in fact revealed, I'll use the word revealed, by the Prophet, was like a fresh air. Arab world जो ट्राइब्स में बटा हुआ था, जो हजारों तरह की पूजा करता था, आइडल्स थे, टोटेम्स थे, एक बहुत ही हैपहैजर्ड सोसाइटी थी, एक हाईली डिसऑर्डर्ड सोसाइटी थी, एक हाईली इनइक्वल्स भरी हुई थी, इनइक्वालिटी से वो सोसाइटी थी, जहां पे द विमेन हैड अ वेरी denigrated low role. Even the older people had very less rights. Islam brought a fresh air. It was like a breath of fresh air. आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन। You know, we always have many wrong notions about Islam. हम हमेशा सोचते हैं कि इस्लाम तो मतलब है कि terrorists. I have had the opportunity of going through the Holy Quran. The Holy Quran is written in ayats. Couplets होते हैं जो आयात हैं. If you go through the entire Holy Quran, and after going through it, I can only say this. It is a very well reasoned, a very scientifically written, और अगर हम कहते हैं कि इनइक्वालिटी है, तो बहुत हद तक इनइक्वालिटी को खत्म किया है, क्योंकि प्लीज रिमेंबर, द प्रॉफिट कुड नॉट चेंज द एंटायर लॉ ओवरनाइट. He could not just throw away the entire Arab law and superimpose a brand new law or a brand new culture.
he had to reform the existing Arab customary law. He could not at that juncture afford to kick out lock, stock and barrel the entire law and usher in a brand new law which was not palatable to many people. Because he was bringing reforms. I still feel that the succession law of Muslim law is probably the most advanced and the most brilliant piece of work. वो जब हम आएंगे तो देखेंगे. Unfortunately, these terrorists, in the name of jihad also I will discuss, इसका misuse किया है. Nowhere does Islam teach any hatred. In fact, I would like to discuss one very last sermon of the Prophet. The last sermon of the Prophet बड़ी interesting चीज है. Brotherhood of man. All men are brothers. Brotherhood of man was preached by the Prophet. Nowhere does he say that you kill others. I like to read his last sermon. In his last sermon, the Prophet says the Arab is not superior to the non-Arab. The non-Arab is not superior to the Arab. You are all sons of Adam. And Adam was made of earth. कहीं नहीं वो कहते हैं कि दूसरों को मारो या वो आपसे अलग हैं. Nowhere. It is over a period of time that some vested interests have given Islam a color of the law of vengeance and terrorism, bloodshed, वगैरह वगैरह. हम पहले आज हिस्ट्री खत्म कर लेते हैं. I'll go to शरीयत in my next lecture naturally, but मैं ये चीज समझाना चाहता हूं. All of us, have got preconceived notions because of ये पिछले 10-20 साल से जो टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो ISIS था या और भी जो भी हैं, जो इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. It was never the will of Allah, or for that matter anywhere does the Prophet himself write this. See, अगर हम बोलें जिहाद बेसिकली अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई. वो कौन नहीं करता है? क्या क्रिश्चियंस की क्रूसेड्स नहीं हुई? क्या हमारी भी बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां नहीं हुई धर्म को बचाने की लड़ाई? जिहाद इज समथिंग नॉट विच इज वेरी पेक्यूलियर कि जी सिर्फ इस्लाम में आ गया. हर रिलीजन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हजारों लोग मरते हैं या मारते भी हैं. टेक अप एनी रिलीजन. However, somehow, because of vested interests, कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए बना लिए. इसको अब एक अलग ही इंटरप्रिटेशन दे दी है. जिहाद के नाम पे आई विल से बहुत सारा अन्याय भी हो रहा है, जो कि कभी प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं कहा.
However, there has been now a wide, worldwide एक 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 कहीं एक एस्पेक्ट आ गया. Jihad is terrorism. So first of all, before we start Muslim law, we must open the doors of our mind to realities, to reason, and not have any preconceived notions about any religion or any law which emanates from such religion. Any religion which is counterproductive, any religion which does not serve for the good of society ceases to exist. Islam is the second largest religion in the world today. उसकी अच्छाइयां हैं, उसकी वजह से. We were on the history. पहले वो खत्म करते हैं. As I told you, the first epoch finishes with the death of the Prophet. In AD, AH 11 rather, 632. जब उनकी डेथ हुई, उस टाइम पे उनका कोई लड़का नहीं था, उनकी लड़की थी, who was married to Ali. And from this marriage, two grandsons were born to the Prophet, Hussein and Hassan. As I told you, Islam was not a new law, not a new पूरा एक way of life नया नहीं था. It was reformation of an already existing Arab customary law. This is the reason why, उसका हम बिल्कुल अरब लॉ को जैसे कहते हैं ना साफ करके बाहर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते थे. उस अरब लॉ का एक बेस था, नो प्लेस फॉर एग्नेट्स, सॉरी, नो प्लेस फॉर कॉग्नेट्स. ओनली वो जो मेल्स हैं उनको राइट्स थे, चाहे वो प्रॉपर्टी के हैं या कोई भी है. कॉग्नेट्स जो लड़की के थ्रू आते थे, उनकी जगह बहुत ही पिछड़ी हुई थी. Now, when the Prophet died, he did not nominate any successor. उनकी डेथ के बाद एक लड़ाई छिड़ी. उसमें एक ग्रुप कहता था कि बाय इलेक्शन करो, और एक ग्रुप कहता था कि इलेक्शन क्यों करो. अभी उनके ग्रैंडसन्स नवासे जो हैं वो छोटे थे. हसन एंड हुसैन वर माइनर. तो उनका जो फादर है अली, उनको बना दो, बिकॉज उनके पास डीएनए है प्रॉफिट का. हुसैन एंड हसन बोथ आर द ग्रैंडसन्स ऑफ द प्रॉफिट. क्योंकि उनके ग्रैंडसन्स हैं तो उनमें खून तो प्रॉफिट का ही है, डीएनए तो प्रॉफिट का है. तो जब हमारे पास प्रॉफिट का डीएनए के लोग मौजूद हैं तो हम क्यों बाहर का आदमी अलाउ करें. ये लड़ाई हो गई. एक तरफ कि नो कॉग्नेट्स कैन बी अलाउड, हमारा लॉ है, और एक तरफ कि अल्लाह के एक ही नुमाइंदे और उनका खून है इनमें, तो क्यों ना इनको बनाया जाए, या इनको अभी जब तक ये माइनर है इनके फादर को बनाया जाए. लड़ाई हुई. बट क्योंकि अबू बकर जो थे वो ससुर थे, he was elected as the first person after Prophet Muhammad.
ये जो बाद में आते हैं, जो हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट की जगह ले रहे हैं, बट दे वर व्हाट वी कैन से एज sitting as their agents, as their representatives, अगर हम ऐसा वर्ड यूज करें. So the successor was basically not sitting on his place. They were on a subservient position, but somebody had to continue as the head of that organization, though at a lower level. रसूल तो एक ही हैं और वो हैं प्रॉफिट, पर अब उनकी जगह उनके अब लोअर लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो एक ही हैं और वो तो गए. इसीलिए अब जो लोग आ रहे हैं उनको हम कहते हैं कैलिफ्स, खलीफा. तो फर्स्ट कैलिफ जो बनते हैं, जो उनका सक्सेसर बनते हैं प्रॉफिट के, वो बनते हैं उनके ससुर अबू बकर. सो अबू बकर नाउ, यहां से शुरू होता है हमारा सेकंड फेज ऑफ इस्लाम. यहां पे अबू बकर टेक्स ओवर एज द सक्सेसर. ही इज इलेक्टेड. अबू बकर से के इलेक्शन से बहुत ज्यादा टर्मोइल हो गया, डिसेंशन शुरू हो गए मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि प्रॉफिट के अपने खून है अवेलेबल, तो आप क्यों इनको बाहर वालों को लगा रहे हैं. ये लड़ाई हो गई. अबू बकर रिमेन्ड 2 years के आसपास वो रहे कैलिफ. उसके बाद उमर वॉज इलेक्टेड एज द सेकेंड कैलिफ. डिसेंशन बढ़ते जा रहे हैं. उमर बिकेम द सेकेंड कैलिफ. ही वॉज असैसिनेटेड. जैसे कि मैंने बोला कि लड़ाइयां शुरू हो गई थी. उमर के बाद आते हैं उस्मान. ही बिकेम द थर्ड कैलिफ. इवन ही वॉज असैसिनेटेड. नाउ उस्मान's कैलिफेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उस्मान कैलिफ के टाइम पे जो आज हम कुरान का स्वरूप देखते हैं वो बन के आता है. इट इज एट दिस टाइम दैट द होली कुरान वॉज नाउ गिवन अ फॉर्म एंड इट वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म विच वी सी टूडे. द क्रेडिट गोज टू उस्मान. कि थर्ड कैलिफ, पहले कैलिफ अबू बकर, दूसरे कैलिफ उमर, तीसरे कैलिफ उस्मान. उमर का भी कत्ल हो जाता है, उस्मान कैलिफ का भी कत्ल हो जाता है. चौथे कैलिफ बनते हैं अली, जो सन इन लॉ थे प्रॉफिट के, जो दूसरी धड़ा कहता था कि उनको लाना है. अली ऑल्सो वॉज असैसिनेटेड, क्योंकि अब दूसरे वाले जो थे वो खुश नहीं थे. अभी क्योंकि इतने असैसिनेशंस, 3 कैलिफ्स असैसिनेट हो गए थे, उनका कत्ल हो गया था. इसके बाद क्या हुआ कि अब बच्चे भी बड़े हो गए थे. वन ऑफ द ग्रैंडसन्स ऑफ द होली ऑफ द प्रॉफिट, हसन, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लड़ना. बट यहां पे हम बात करते हैं कि जब अली बिकम्स कैलिफ, यहां पे हमारा फेज 2 खत्म हो जाता है. ये चारों कौन थे? अबू बकर, उनके अपने ससुर एंड उनके कंपेनियन. उमर, उस्मान एंड अली, ऑल 4 आर हिज कंपेनियंस, जो कायदे से उनके साथ थे जब रेवलेशंस आ रहे थे. इनकी जो ये ट्राइब थी सारी, उनका नाम था कुरैशीज.
तो पूरी ट्राइब जो थी वो थी कुरैशीज। कुरैशीज में आपस में फूट पड़ गई। एक धड़ा उनमें से कहता था कि ये जो कैलिफ्स हैं ये भी तो प्रॉफिट के साथ ही उठते बैठते थे, सारे रेवलेशंस प्रॉफिट ने इनको डायरेक्टली दिए, तो ये क्यों ना कैलिफ बने, क्या गड़बड़ है। और हमारे यहाँ पे तो अरब लॉ में तो कहीं भी कोई लड़की की बच्चों की जगह नहीं है, कॉग्नेट्स की जगह नहीं है, तो क्या गलती है अगर हम इनको बना रहे हैं। और एक धड़ा कहता था नहीं, सिर्फ जो प्रॉफिट के डीएनए है, उनके उनके खून है जिनमें, वो ही बनने चाहिए। इस वजह से कुरैशी ट्राइब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट का नाम हो गया उमायद्स। हाउ डू वी स्पेल उमायद्स? OMMAYADS, उमायद्स। और दूसरे जो कहते थे कि प्रॉफिट के खून जिनमें है उनको बनाना है, उनका नाम हो गया हैशमाइट्स, HASHIMITES। तो कुरैशी ट्राइब जो एक थी प्रॉफिट के टाइम पे, उसका विभाजन हो गया, उसका डिवीजन हो गया। एक बन गए उमायद्स और एक बन गए हैशमाइट्स। यही अब बनते हैं बाद में, ये बन जाते हैं सुन्नी और वो बन जाते हैं शिया। यहां पे हमारा फेज 2 इस्लाम का खत्म होता है विद द डेथ ऑफ अली, with the assassination of Ali, the second phase of Islam finishes. तो second phase कौन था? कैलिफ्स। चार कैलिफ, चारों कैलिफ जो कभी ना कभी प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए थे, जो उनके खास थे, कंपेनियन थे। Now with the death of Ali, मैंने आपको बताया कि दो धड़े बन चुके थे, उमायद्स एंड हैशमाइट्स। ये सुन्नी बनते हैं बाद में, ये शिया। जो अब डेथ होती है प्रॉफिट की, तो जो अली के बेटे थे हसन, उन्होंने कहा कि मुझे लड़ाई है नहीं लड़नी। सारे तीन कैलिफ्स के तो कत्ल हो गया था। उन्होंने कहा लड़ाई छोड़ो, उमायद्स को हम दे देते हैं। नेचुरली ही वाज बैक्ड बाय द हैशमाइट्स, शियाज, तो शियाज इनको बैक कर रहे थे। उमायद्स को उन्होंने, उनका जो उस टाइम पे जो था मेन पर्सन, उसका नाम था मुआविया, MUVAIA, मुआविया, MUAVIA, मुआविया। तो हसन ने कहा कि हम क्यों लड़ रहे हैं, आपको गद्दी चाहिए ना, ले लो, आई एम गिविंग इट टू यू। एंड नाउ ही गेव अप कि हमें कोई गद्दी नहीं चाहिए, नहीं तो अली के बाद उनका नंबर आ रहा था। उन्होंने कहा मुआविया को बोला कि दूसरा उमायद के जो थे कि तुम ले लो। इस चीज को छोटे भाई जो उनके थे हसन के, हुसैन, ही सेड गलत है, ये डर के नहीं जिएंगे, दिस इज इन प्रिंसिपल रॉन्ग। एज अ रिजल्ट दोनों की अब लड़ाई हो जाती है। जो एक ट्राइब थी पहले, कुरैशी ट्राइब, दो धड़ों में बट गई। एक जो कैलिफ्स को, जो कंपेनियन से, उनको सपोर्ट करती थी और कहती थी कैलिफेट बाय इलेक्शन होना चाहिए, और एक जो कहती थी कि नहीं, जो प्रॉफिट का खून है वो चलना चाहिए, चाहे लड़की के बच्चे हैं तो क्या हो गया, प्रॉफिट का डीएनए तो है। हैशमाइट्स, तो हैशमाइट्स और उमायद्स, दो ग्रैंडसन थे, हुसैन एंड हसन। हसन ने कहा मुआविया का, जो उमायद्स का उस टाइम पे थे, कि आप गद्दी ले लो, हमें नहीं चाहिए। हुसैन ने ऑब्जेक्ट किया, लड़ाई के लिए दोनों आर्मीज आ गई। उमायद्स और हैशमाइट्स की लड़ाई होती है इन द बैटल ऑफ करबला।
The battle of Karbala is a very, very important battle in the history of the world. क्योंकि उस बैटल में ग्रैंडसन्स मारे जाते हैं. दैट इज द रीजन. अब उस दिन, क्योंकि नेचुरली दोनों ग्रैंडसन्स और एक वो भी प्रॉफिट के अपने खून थे, वो मारे गए, वो भी अपने ही लोगों के हाथों. या तो ना कि चलो क्रिश्चियंस ने आके या जूज ने या बाहर कोई जो पगान आर्मी थी उन्होंने मार दिया, अपने ही ट्राइब के लोगों ने मार दिया. इसीलिए जिस दिन ये बैटल में इनकी डेथ होती है, उस दिन को पूरे दुनिया में ये एज अ डे ऑफ मॉर्निंग मनाते हैं. दुख का दिन होता है. और इस दुख के दिन को हम मनाते हैं एज मुहर्रम. तो मुहर्रम में क्या होता है, वो एक अपने आप को कोड़े मारते हैं और अपने आप को पनिश करते हैं कि या अली हम ना थे, अगर हम होते तो हम बचा लेते, हमें इसके बहुत दुख है. तो बेसिकली दैट इज वाई. और पर यहां से एक ट्राइब जो एक थी, जो सिर्फ इसलिए बट गई कि पहले गद्दी पे ये बैठेंगे कि वो बैठेंगे, इस बात पे, और अल्टीमेटली लेड टू द मर्डर ऑफ द 2 ग्रैंडचिल्ड्रन ऑफ द प्रॉफिट हिमसेल्फ. ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये कोई माफ नहीं कर सकता था. और यहां से दोनों की आपस में कट्टर दुश्मनी हो गई, सुन्नीस की और शियास की. हैं दोनों मुसलमान, हैं दोनों एक ही जगह से आए हैं, एक ही ट्राइब थी ओरिजिनली, दोनों प्रॉफिट के मुरीद हैं, उन्हीं को मानते हैं. उस प्रॉफिट तक कोई लड़ाई नहीं है. पर अब क्या होता है, शिया कहते हैं कि ये जो 3 कैलिफ आए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तो उनके अपने थे क्योंकि उनके नवासों के फादर थे, ये तीनों गलत बैठे. इन तीनों ने गलत किया है. इनके कैलिफेट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. हमारे लिए अली पहले हैं. इसीलिए जितने भी लॉज, जितने भी रूल्स ये 3 कैलिफ्स ने बनाए, बिकॉज वो भी नेचुरली, बिकॉज दे वर द कंपेनियंस ऑफ द, बहुत बड़े लोग हैं ये, they are the companions of the prophet himself. उनका वर्ड भी वर्ड ऑफ लॉ है. इसलिए मुस्लिम लॉ में इन तीनों कैलिफ्स की जितनी भी बातें कही गई हैं वो लॉ है, वो सबसे बड़ा लॉ है. तो अगर हम बात करें कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो लॉ रिस्पेक्टेड है वो है इन 3 कैलिफ्स का, चाहे वो अबू बकर है, चाहे वो उमान है, चाहे वो उस्मान है. शियाज कहते हैं, ये जो हैशमाइट्स थे शिया बन गए, ये कहते हैं कि हम उन पहले 3 को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और उनके जो लॉज उन्होंने दिए हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. ये जो सुन्नीज हैं, जो उमायद से पहले, वो कहते हैं हमारे तो ये हैं. इसीलिए सुन्नीज जो हैं वो इन 3 कैलिफ के लॉज भी मानते हैं. शियाज इन पहले 3 कैलिफ के लॉज नहीं मानते. और यही फर्क है सुन्नीज का और शियाज का. सुन्नीज डोंट एक्सेप्ट एनी लॉज, दे डोंट रिकॉग्नाइज देम, they don't recognize any laws made by the first 3 caliphs, whereas the Sunnis recognize, whereas the Shias do not recognize any law made by the first 3 caliphs. और यही मेजर फर्क है शिया लॉ का और सुन्नी लॉ का. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड कि शिया और सुन्नीस की आपस में लड़ाई कैसे शुरू हुई और क्या. अब ये जहां पे अली का असैसिनेशन होता है, मैंने आपको बताया था, वहां मुस्लिम लॉ का 2nd फेज खत्म हो जाता है. यहां से तीसरा फेज शुरू होता है. तीसरे फेज में मैंने आपको जैसा कि बताया, हसन हैड रिजाइंड इन फेवर ऑफ मुआविया, उमायद्स का. बैटल ऑफ करबला होती है बिकॉज दूसरे भाई हुसैन ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने को. और यहां से कंप्लीट डिवीजन हो जाती है. 2 धड़े हमेशा के लिए बन जाते हैं, सुन्नीस के और शियास के.
इसके बाद बैटल ऑफ करबला के बाद मुआविया बिकेम द हेड ऑफ अरब्स। उनके मरने के बाद, मुआविया के मरने के बाद, अभी तक तो इलेक्शन हो रहा था, अब शुरू हो गया हेरिडेटरी कैलिफ। जो कैलिफ होगा उसका बेटा अगला कैलिफ बनेगा। तो हेरिडेटरी प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मुआविया। काफी साल, काफी सेंचुरीज उमायद डायनेस्टी बना चलती गई, उमायद्स थे ये। उसके बाद एक और लोग आते हैं, अब्बासिड्स, ABBASIDES। ये अब्बासिड्स जो आते हैं ये उमायद्स को ओवरथ्रो कर देते हैं। अब एक नई डायनेस्टी आती है अब्बासिड्स की, जो उमायद्स को अब बाहर कर देते हैं और अब वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब अब्बासिड्स ने क्योंकि इनको हरा दिया, इनको बाहर कर दिया, अब उन्होंने कहा कि अब्बासिड्स आर द स्पिरिचुअल हेड्स ऑफ मुस्लिम्स। जो अब्बासिड्स थे इसी टाइम पे, ये जो कुरैशी ट्राइब्स पहले उमायद और हैशमाइट्स में बनी, यही सुन्नी बन गए, ये शिया बन गए। उमायद्स को ओवरथ्रो किया अब्बासिड्स ने। इसी टाइम पे सुन्नीज और शियाज के सब स्कूल बनते हैं। 4 स्कूल सुन्नीज के बनते हैं और 3 स्कूल शियाज के बनते हैं, सब स्कूल। तो शियाज के अब अलग अलग थिंकर आए, उन्होंने शियाज के अलग अलग स्कूल बनाए। जो सबसे पुराना पहले स्कूल आया, जो सबसे फेमस स्कूल है पूरे वर्ल्ड में, हनाफी स्कूल। हनाफी, इट वाज बेस्ड ऑन अबू हनीफा, ये पहला आता है। ये ओल्डेस्ट स्कूल है सुन्नीस का। उसके बाद आता है सेकंड शफी स्कूल, शफी, विच वाज अगेन बेस्ड ऑन मोहम्मद शफी के बेस पे था। तीसरा आता है हनबाली, HANBALI, हनबाली स्कूल, जो हनबाल, अहमद हनबाल ने he had laid down the foundation, and the last school is the Maliki school. तो बेसिकली 4 सब स्कूल बनते हैं, हनाफी, मलिकी, शफी एंड हनबाली। ये 4 सुन्नी स्कूल बनते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इनका फर्क क्या है, थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं। उधर शियाज के भी 3 स्कूल बन गए। पहला स्कूल जो बन गया वो बन गया जायदी, ZAYDI, जायदी स्कूल। दूसरा जो इंडिया में मेन है वो है इथना अशारी, ITHANA, इथना अशारी, ASHARI, इतना अशारी स्कूल। और तीसरा स्कूल आता है इस्माइल स्कूल। तो कायदे से 4 सब स्कूल बन गए सुन्नीस के और 3 सब स्कूल बन गए शिया के। तो अब अब्बासिड्स का पूरा चल पड़ता है। दिस इज द अब्बासिड्स रूल। और उसी टाइम पे ये चेंजेस आ रहे हैं। अब बहुत सारे चेंजेस, नेचुरली lot of changes were coming in. As I said, naturally, क्योंकि इस्लाम बढ़ रहा था, बहुत बढ़ रहा था, पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, मिड एशिया में तो पूरा आ गया था। नेचुरली नए लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। अब आर्मीज आगे बढ़ रही थी। अब जहां जहां वो कॉन्कर कर रहे थे उनका एरियाज भी आ रहा था इनके पास, उनके भी चीजें समझ रहे थे। सो बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे इनमें। All those changes were being incorporated in Islam and Islam was growing, और हर चीज़ उसमें बहुत सारी इनकॉर्पोरेट होके आ रही थी। तो यहाँ पे अब्बासिड्स के टाइम तक का हमारा है फेज नंबर 3। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है फेज 3। 4th फेज में क्या होता है? अब्बासिड्स वर नाउ रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड, और उसमें अब मंगोल्स इन्वेड करते हैं बगदाद को। 1258 AD की बात है, मंगोल्स करते हैं। और जो 37th अब्बासिड के जो कैलिफ थे
उनका नाम था अलमुस्ता, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, उनका मर्डर हो जाता है। तो पहली बार किसी कैलिफ का मर्डर होता है। मंगोल्स बहुत खूंखार लोग थे, इंडिया में भी आए थे, दे मर्डर्ड। वो असैसिनेशन से पूरा का पूरा कैलिफ की फैमिली को खत्म कर दिया था उन्होंने। उससे कैलिफेट का जो एक रुतबा था वो कम हुआ। Naturally, when the caliph could be murdered and his entire family could be assassinated, it naturally gives a bad name. उसके इसीलिए अब कैलिफेट चला गया कायरो, इजिप्ट। वहां पे अब्दुल अहमद थे। अब्दुल अहमद को कैलिफ बनाया गया कायरो में, और अब बगदाद से इट हैज गॉन टू कायरो इन इजिप्ट। इस टाइम पे 1500 के आसपास, 1500 एडी के आसपास एक राइज होता है दुनिया के नक्शे पे, और हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा एपोक है ये, ओटोमैन एम्पायर। ओटोमैन एम्पायर is a very very famous epoch in the world history. Ottoman Empire एक ऐसा बड़ा पूरा दुनिया को छा गया, पूरी जगह इस्लाम का इन्होंने बना दिया। टर्की was the base. Constantinople was their main जो इनका कैपिटल था। कॉन्स्टेंटिनोपल से पूरा ओटोमैन एम्पायर, पूरा यहां तक कि हमारे बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर तक आ जाता है। वो पहली और आखिरी बार था कि इतना बड़ा साम्राज्य जिसको हम कहते हैं इस्लामिक साम्राज्य था। जो आज के दिन में ISIS है, वो इसी चीज का सपना लेके चलती है कि एक बार पहले ओटोमैन एम्पायर था जो पूरे वर्ल्ड में छा गया था ऑलमोस्ट, तो वही हम दोबारा लाएंगे। उसी को बेस बनाया हुआ है ISIS ने। अब ओटोमैन एम्पायर का राइज होता है और ओटोमैन एम्पायर दुनिया में छा जाता है। सो नेचुरली कैलिफेट वही लेंगे जब सबसे पावरफुल है, और कैलिफेट का तब रुतबा वो नहीं रहा था। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ओटोमैन एम्पायर जो है वो असाइन करा लेते हैं, डीड बनवा लेते हैं कि जो सलीम वन वॉज द नेम ऑफ द एम्परर ऑफ ओटोमैन एम्पायर, उन्होंने अपने नाम पे कैलिफेट की डीड बना ली बाय असाइनमेंट, और अब कैलिफेट आ गया ओटोमैन एम्पायर के कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जो आज की टर्की है हमारी। अब कॉन्स्टेंटिनोपल बिकेम द सीट ऑफ कैलिफेट। अब तो बगदाद, कायरो, और अब नाउ वी आर इन कॉन्स्टेंटिनोपल, जो हम टर्की आज के दिन में हम कहते हैं। टर्की में अब टर्की रिमेन, तभी तो आज के दिन में भी हम टर्की को बहुत बड़ा एक है, वैसे छोटा राज्य रह गया पर हम उसको बहुत बड़ा अहमियत देते हैं क्योंकि आखिरी कैलिफेट यहीं आया। इसके बाद टर्की में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बादशाह आता है। दिस वॉज इन 1922, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारी हिस्ट्री में जो हमें जरूर याद रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन मैन हु ब्रॉट प्रोग्रेसिवनेस टू टर्की। He had a very big vision. He was a democratic person in nature. तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क हमारे पास ना, इनफैक्ट दिल्ली में भी हम जब जाते हैं चाणक्यपुरी में, एक रोड उनके नाम पे ही है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग। ये बहुत फेमस मार्ग है बिकॉज ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन. He was a very forward-looking man and a very democratic type of person. He said, "What is this mazak? Caliphate started with the religious. अब ये तो आप बेच दे तो कैलिफेट, लो जी तुम खरीद लो, ये तो खरीदने की चीज होगी, क्या मजाक बना दिया आपने." सो उन्होंने क्या किया, 1922 में अपनी जो उनकी पार्लियामेंट बैठी, उन्होंने एक प्रस्ताव निकाल के कैलिफेट को एबॉलिश कर दिया. The caliphate stood abolished, और वहां से it stood abolished
by a National Turkish Assembly अंकारा में बैठी, 1927 में कैलिफेट was abolished और तब खत्म होता है। तो जो अबू बकर से शुरू हुआ कैलिफेट, वो 1927 में टर्की की नेशनल असेंबली उसको एबॉलिश कर देती, क्योंकि उन्होंने कहा ये क्या मजाक बन गया। ये जो कैलिफेट को एबॉलिश किया, बहुत बार कोशिश की गई। एक बार एक खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी इंडिया में भी, अली ब्रदर ने यहाँ पे टर्की में ही शुरू की थी कि दोबारा कैलिफेट शुरू करो। इंडिया में भी उसके बहुत बड़ा असर हुआ था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और हिंदू मुसलमान एक हो गए थे इसी टाइम पे, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट करती थी कि नहीं, वापस खिलाफत मीन्स कैलिफ्स, कैलिफ को ही हम कहते हैं खलीफा। तो खिलाफत मूवमेंट वहीं से शुरू हुई और इसीलिए इतना उसका बना। आज भी एक सपना है कि वही वाला ओटोमैन एम्पायर जो है वो फिर से बनेगा। तो जितने आज के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, खासकर ISIS बगदाद वगैरह में, वही सब उनका वही सपना है कि अगर हम पहले, हमारा एक साम्राज्य था जो ऑलमोस्ट आधी दुनिया पे था, तो अब क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए वो बार बार क्या कहते हैं, मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वी विल अगेन हैव दैट ग्रैंड ओल्ड ओटोमैन एम्पायर, जो हमारा आज भी सपना है कि हम बनाएंगे उसको। उसी को लेके सारी लड़ाइयाँ होती हैं। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एज इट हैज ट्रेवल्ड पॉलिटिकली ओवर द ईयर्स, जो शुरुआत हुई थी प्रॉफिट से और ख़त्म होती है एबॉलिशमेंट इन द 4th फेज। ये 4 फेजेस हैं हम इस्लाम की हिस्ट्री के ले सकते हैं। वी मस्ट नो दिस बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट मुस्लिम लॉ वी मस्ट नो द डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिकल epochs of Islam. I hope now everybody is clear about the entire history of Islam, how it has progressed, how Shias and Sunnis came into existence, what are the basic points of contention between them, and how the Islam has progressed over the centuries. We'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.